اور یہیں سے ہوتا ہے اتحاد ٹاؤن فیز 4 کی کامیابی کا آغاز۔ میرے خیال میں آپ کے پوڈ کاسٹ پہ فرسٹ ٹائم اناؤنس کروں کہ ہم انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے بڑے بڑے محل نما گھر ہیں۔ یہ میں بڑی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج تک ایک یونٹ بھی ہم نے اوور سیل نہیں کیا۔ تو ون کنال کی جو کیٹیگری ہے اس کو آپ ریزیڈینشیل پوائنٹ آف ویو اور انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے کیسے دیکھتے ہیں؟ شاید سال کے بعد لوگ اس وقت افسوس کر رہے ہوئے کہ یار اگر ہم ڈیسیجن لے لیتے تو آج ہمارا بھی یہاں پہ اس طرح کا ایک گھر ہوتا یا پلاٹ ہوتا۔ سو وہ بڑا ایک آرگینک اور بڑا فیئر جو ہوتا ہے ریز ہوتا ہے وہ ملتا ہے لوگوں کو۔ یہاں پہ جب بڑے گھر ہوں گے، بڑا انفراسٹرکچر ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی اس ایریا کی پروفائل ہی بڑھ جاتی ہے۔ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں کچھ لوگ اپنی کامیابی سے اپنی پہچان بناتے ہیں اور کچھ لوگ اس انڈسٹری کو کامیاب بنا کر اپنی پہچان بناتے ہیں۔ آئی ایم داؤد ملک فرام HR پراپرٹیز اور آج میں موجود ہوں ایک ایسی ڈائنامک پرسنالٹی کے ساتھ جس نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ایک اسٹرانگ برانڈ بلڈ کیا، اسپیشلی اس وقت جب یہ مارکیٹ اور انویسٹر دونوں پریشر کا شکار تھے۔ آج نہ صرف وہ ایک ایسے برانڈ کو لیڈ کر رہے ہیں جس نے لاہور ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو ریوائیو کیا، بلکہ ٹیکس ریفارمز اور ریئل اسٹیٹ انیشیٹیوز میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ ریسنٹلی دے ہیڈ لانچ دیئر فلیگ شپ پروجیکٹ آف اتحاد ٹاؤن فیز 4 جو کہ پاکستانی اور اوورسیز پاکستانیز میں اپنی ہائپ کریٹ کر چکا ہے۔ ویل ہیو اے کنورسیشن ود دی CEO آف اتحاد ٹاؤن مسٹر شیخ شجاع اللہ خان۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، many congratulations on the launch of اتحاد ٹاؤن فیز 4۔ Thank you so much. So we are very glad for the project and we wish you very best of luck. Thank you so much. سر ریئل اسٹیٹ کی کچھ بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے سر ریئل اسٹیٹ کے اندر جو کلائنٹس کو فیس کرنے کو ملتا ہے دیٹ از دا اوور سیلنگ۔ سر اتحاد ٹاؤن کے اندر کیا کلائنٹس کو یہ پریشانی فیس کرنے کو ملتی ہے؟ نہیں، الحمدللہ 2017 سے اگر آپ دیکھیں گے فیز 1 سے لے کے فیز 4 تک کوئی بھی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جس کے اندر ہم نے کبھی ایون سوچا بھی ہو کہ ہم اوور سیل کریں گے۔ اور ہمارے سیلز پارٹنر کی تھوڑا سا ہم سے ناراضگی بھی ہوتی ہے کہ جو کوٹا ہمارا اپرووڈ ہوتا ہے فرام LDA یا کمپیٹنٹ اتھارٹی سے، اس سے ایک یونٹ بھی ان کو ایکسٹرا نہیں ملتا۔ اوبویسلی جب مارکیٹ میں ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ میکسیمم سیل کریں، بٹ ہم نے وہی ایک بہت اسٹرانگ چیک رکھا ہوا ہے کہ ہمارے جتنے بھی پلاٹس ہوتے ہیں، بیکاز ہم فائلز بیچتے ہی نہیں ہیں، ہمارا جو میکنزم ہے وہ یہی ہے کہ نمبر آف پلاٹس کے ساتھ ہی ہم سیلز پارٹنر کو انوینٹری دیتے ہیں، تو اس میں اوور سیلنگ کا کانسیپٹ ہوتا ہی نہیں ہے، بیکاز آپ جب میپ پہ نمبر آف پلاٹس ایلوکیٹ کرتے ہیں سیل کے لیے تو اس میں اوور سیلنگ کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ اور الحمدللہ یہ میں بڑی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج تک ایک یونٹ بھی ہم نے اوور سیل نہیں کیا۔ لاہور کے اندر بہت سارے ڈیولپرز ہیں، ہر کوئی ڈیفینیٹلی چاہتا ہے کہ اس کو بیسٹ لوکیشن ملے۔ آپ کا پروجیکٹ ایک واحد پروجیکٹ ہے جس کو 4 اسٹرکچر روڈز کنیکٹ کرتی ہے، تو ڈز اتحاد ٹاؤن گوٹ لکی ہے؟ اس کے پیچھے بڑی ایفرٹس تھی۔ دیکھیں، میں ایک چیز بڑا آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنے بھی اسٹرکچر روڈز ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے پلاننگ میں آتے ہیں، اس کے بعد ہی ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں۔ اور جب آپ لاہور کی پلاننگ دیکھتے ہیں یا ماسٹر پلان دیکھتے ہیں تو سب کو اس کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ کون سا ایریا براؤن ہے، کہاں پہ اسٹرکچر روڈز ہیں، کہاں پہ فیوچر میں ڈیولپمنٹ ہوگی، کون سا فیوچر کا ایسا ایریا ہے جو کہ فیوچر میں لاہور کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا۔ سو اوبویسلی جب ہم نے فیز 2 لانچ کیا تھا اس وقت ایک تو ایز پر دا بائی لاز ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ براؤن ایریا کون سا ہے اور فیوچر کی کنیکٹیوٹی کون سے ایریا میں سب سے اچھی ہوگی، تو وہ یہی ایریا، یہی پاکٹ تھی جو کہ بڑے اسکیل پہ آپ اس ایریا کے اندر بیسیکلی گرو کر سکتے ہیں اور آپ اپنا ایک پروجیکٹ بڑے اسکیل پہ لا سکتے تھے۔ چھوٹے پاکٹس آپ کو شہر کے اندر بھی ملیں گے، رائمنڈ روڈ پہ بھی ملیں گے، ڈفرینٹ ایریاز پہ آپ کو چھوٹے چھوٹے پاکٹس ملیں گے، بٹ اگر آپ بڑے پاکٹ کی بات کریں تو وہ 2 ہی ہے، یا روڈا میں آپ کو مل سکتا ہے یا پھر یہ جہاں پہ ہمارا فیز 2 ہے اس ایریا میں صرف یہ براؤن کا ایک بہت بڑا پاکٹ اویلیبل تھا۔ سو ہم نے 2022-23 کے اندر یہ ایریا سلیکٹ کیا اور اس جیسے جیسے ہم لینڈ خریدتے گئے یہاں پہ اپنے فیزز ہم ایڈ کرتے گئے۔ رائٹ سر، سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے بڑے بڑے محل نما گھر ہیں، بڑے خوبصورت نیبرہڈز ہیں، اس طرح کے نیبرہڈز ہمیں اتحاد ٹاؤن میں بھی دیکھنے کو ملے؟ اوبویسلی دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہم بہت بڑے اسکیل کے اندر 2 کنال اور 1 کنال کے پلاٹ دیتے ہیں اور اس کے پیچھے ہمارا ایک ہی
ऑब्जेक्टिव होता है कि जब हम सोसाइटी को बिल्ड करके और यहाँ पे लिविंग होगी तो यहाँ पे जब बड़े घर होंगे, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो वो ऑटोमेटिकली उस एरिया की प्रोफाइल ही इंक्रीज बढ़ जाती है. सो मेरे ख्याल में ये स्ट्रेटजी जब हमने 2019-20 में प्लान की थी कि हमने किस तरीके से लेके चलना है अपने ब्रांड को, तो वो चीज़ हमने बड़ी कैटेगोरिकली इसमें लॉक कर दी थी कि जब भी हम फ्यूचर में जैसे जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स आते जाएंगे वहाँ पे छोटी कटिंग को डिस्करेज करेंगे और बड़ी कटिंग जिसमें कनाल 2 कनाल के प्लॉट्स हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे. सो उससे क्या होता है कि वो महल नुमा घर, वो बड़ी आली शान किसी की कम्युनिटी वो आपको नज़र आती है. तो हमने अब फेज़ 3 देख लें, फेज़ 4 देख लें, इन दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने एक कनाल की अपना एक सेगमेंट बनाया और उसका टोटल ब्लॉक अलहदा कर दिया. इसी तरह 2 कनाल का सेगमेंट अलहदा किया है और उसमें टोटली वो 2 कनाल पे है और उसके 1 और 2 कनाल के अंदर इम्यूनिटीज़ जो हैं, पार्क्स जो हैं, वो ओवरऑल सोसाइटी में अगर देखेंगे तो सबसे खूबसूरत लीनियर पार्क्स हैं. वहाँ पे एक्टिविटीज़, वहाँ पे मसाजिद, वहाँ पे कॉलेजेस, वो हम उस एरिया में किए जहाँ पे ऑटोमेटिकली वो उस प्लॉट्स या उस सेगमेंट को ऑटोमेटिकली इन्हेंस करेंगे. तो इसीलिए हमारा फोकस भी इसी तरह है कि हम बड़े सेगमेंट्स को प्रमोट करें. 1 कनाल की आपने बात की है, आपने जो प्राइजेस लॉन्च किए हैं दैट्स 195 लाख रुपीज़, 39 लाख रुपीज़ उसकी डाउन पेमेंट है. डू यू थिंक इट जस्टिफाई द प्राइस ऑफ 1 कनाल? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमेशा जो प्लॉट की या प्रोडक्ट की प्राइस होती है वो रॉ मटेरियल पे ही डिपेंड करती है. और हमारा अगर आप देखें, हमारा रॉ मटेरियल क्या है, वो हमारी लैंड है. जब आपकी लैंड की प्राइस इंक्रीज़ करती है, जब आपकी वहाँ पे ऑब्वियसली अब आप लैंड ख़रीदते हैं तो आपकी लैंड की प्राइस को ही आपने देखना होता है, फिर उस पर एक्सपेंसेस देखने होते हैं, उसके बाद फिर आपने प्रॉफिट देखना है और देन उसके प्रोडक्ट की प्राइस निकलती है. सो मेरे ख्याल में आज भी अगर आप अच्छी सोसाइटी में कनाल का प्लॉट जो कि अप्रूव्ड भी हो, जिसमें ओवर सेलिंग भी ना हो, जो कि ग्रीन पे भी ना हो, अगर इस तरह के एरिया में आप 1 कनाल का प्लॉट लेते हैं तो 4.5-5 करोड़ से नीचे आपको नहीं मिलता. सो ये वो बेस्ट टाइम है. और अच्छा, एक चीज़ और भी देखें कि ये कहीं पे भी आपको बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर या बड़े डेवलपर्स को अगर आप आज भी वहाँ पे प्लॉट लेंगे तो आपको इंस्टॉलमेंट पे नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको लम सम में मिलेगा. तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हम अपने एंड यूज़र्स को ये दे रहे हैं कि एक तो कम प्राइस प्लस 3 साल के पेमेंट प्लान पे. सो उससे मेरे ख्याल में ये वो टाइम है जहाँ पे शायद साल के बाद लोग शायद उस वक्त अफसोस कर रहे होंगे कि यार अगर हम डिसीजन ले लेते तो आज हमारा भी यहाँ पे इस तरह का एक घर होता या प्लॉट होता. तो ये अफसोस तो हमें फेज़ 1 फेज़ 2 के अंदर देखने को मिला है लोगों का. जैसे प्राइजेस अप्रिशिएट हुई हैं, जैसे लोगों ने प्रॉफिट्स कमाए हैं, नो डाउट इट्स अ ग्रेट प्रोजेक्ट. उसी के रिलेटेड बात करूँगा. 1 कनाल की जो कैटेगरी है, इसको आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं? देखें, कनाल के अंदर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि शायद कनाल से नीचे उनकी फैमिली या उनकी जो लिविंग है वो शायद एकमोडेट या उस तरह फुलफिल ही नहीं करती वो रिक्वायरमेंट. सो 1 कनाल का फ्यूचर में अगर आप देखें 5 मरले के बाद सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन 1 कनाल में होती है, बिकॉज ये स्टैंडर्ड एक साइज़ है जिसके ऊपर लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए भी और लिविंग के लिए भी सबसे आइडियल प्लॉट होता है. ऑब्वियसली हर बंदे का अपना बजट होता है तो आप उसी बजट में खेलते हैं, लेकिन अगर 5 कनाल के बाद सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट है वो 1 कनाल की है. तो 1 कनाल आज भी मेरे ख्याल में हमारा अगर फेज़ 1 में देखें, प्रीमियर इनक्लेव में देखें, फेज़ 2 में देखें, सबसे ज़्यादा डिमांड 1 कनाल की है. तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज उस प्रोडक्ट के अंदर जब हम ये लॉन्च कर रहे होते हैं उसमें लीनियर पार्क्स होते हैं, जॉगिंग ट्रैक्स होते हैं, उसके साथ बड़े बड़े अच्छे लाइक अब आप फेज़ 3 में देखें तो वाटर पार्क उसके बिल्कुल सामने. तो ये बहुत सी अट्रैक्शंस हम डे फर्स्ट पे 2 कनाल और 1 कनाल के रेजिडेंट्स के नज़दीक हम डालते हैं इस चीज़ को. सर, आजकल आसान घर ऑफ़र एक ऐसी ऑफ़र है गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें बहुत सारे लोगों के लिए आसानी पैदा की है. सर, इत्तेहाद टाउन इसको किस तरह से लेगा? यार मेरे ख्याल में आज भी मैं कह सकता हूँ 100% दावे के साथ कि जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन आसान घर की इत्तेहाद में हो रही है शायद कहीं हो रही होगी. उसकी सबसे मेन वजह है कि जो रिक्वायरमेंट बैंक्स की होती है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जी आपके लैंड का टाइटल बैंक के नाम पे जाता है, जिसको हम रजिस्ट्री बोलते हैं, वो बहुत कम डेवलपर्स देते हैं. यहाँ पे एक ट्रेंड है कि वो ट्रांसफ़र लेटर या वो एक पोजेशन लेटर और साथ में वो
ट्रांसफ़र लेटर दे देते हैं. बट अगर आप इतिहाद में देखेंगे तो हम अपने एंड यूज़र्स को रिमाइंडर्स और नोटिस भेजते हैं कि आप अपनी लैंड अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवाएं, और रजिस्ट्री के लिए हम पुश कर रहे होते हैं. सो दिस आई थिंक दिस इज़ द ओनली सोसाइटी, या कुछ ऐसी सोसाइटीज़ होंगी जो ये वाली इक़दाम कर रहे हैं. सो बैंक की जो रिक्वायरमेंट होती है वो इसी पे फुलफ़िल हो जाती है कि अगर कोई डेवलपर जो लोन होल्डर होता है या जिसने लोन लिया होता है, अगर उसको रजिस्ट्री करा के दें तो बैंक इमीडिएटली उनको लोन पास ऑन कर देता है. और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर हम रजिस्ट्री देते हैं. जैसे ही पेमेंट उनकी 100% कंप्लीट हो जाती है तो हम फ़ौरन उनकी रजिस्ट्री करा देते हैं. राइट, गवर्नमेंट स्कीम की हमने बात की. रिसेंटली देयर हैव बीन सम टैक्स रिफॉर्म्स एज वेल इन रियल एस्टेट. सर व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? बहुत अच्छी बात है. देखें, एक इंडस्ट्री है जहाँ के अंदर जिसमें पोटेंशियल भी है, जिसके अंदर बहुत बड़ा पैसा बाहर से भी वापस आ सकता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली बाहर गया था. $1 बिलियन वापस आया है पिछले महीने. अगर आप देखें उसके बाद इंक्रीज़ होता जा रहा है. उसकी एक ही वजह है, बिकॉज यहाँ पे रियल स्टेट के अंदर आज भी बहुत अच्छी ROI है. आज भी अगर आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर आप डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट उन प्रोजेक्ट्स की मेक श्योर करें कि उसकी अप्रूवल और उसका वो प्रॉपर लीगली लेजिटिमेट हो प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर इतना ज़्यादा अभी भी पोटेंशियल है इस प्राइस इंक्रीज़ का और उसकी ओवरऑल उसके ROI बेहतर करने का. मेरे ख्याल में किसी और प्रोडक्ट में आपको नहीं मिलेगी. लोग कहते हैं कि जी हम डॉलर लेके रख लें, गोल्ड, तो उसकी सेफ्टी का एक प्रॉब्लम है, लोग घरों में नहीं रख सकते. सो फिर बेस्ट ये होता है कि जी आपने प्लॉट ले लिया, उसकी इंस्टॉलमेंट जमा कराना शुरू की, तो जैसे ही आपके साल 2 साल 3 साल गुजरते हैं वो प्लॉट अप्रिशिएट भी कर जाता है और वहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा हैंडसम प्रॉफिट भी मिल जाता है. तो ये रियल स्टेट के जब टैक्सेस कम हुए, और इसमें बहुत एफर्ट है हमारे जितने भी डेवलपर्स हैं उनकी आबाद की, तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि जिस तरह 236C में 50% डिक्रीज़ हुआ, फिर आपका FED ख़त्म हुआ, फिर इसी तरह आपको जो 1% रिडीम जो 7E था वो रिड्यूस हुआ, तो ख़त्म हुआ. तो उससे क्या हुआ कि लोगों को एक पॉजिटिविटी मिली कि यार गवर्नमेंट साइड से भी रियल स्टेट को ओन किया गया. सो उससे मार्केट को आपने पिछले 2 महीनों में देखा होगा कि मार्केट में हलचल शुरू हुई. डिफरेंट डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए. उससे पहले सारे डेवलपर्स खामोशी से बैठ गए थे कि यार मार्केट ही इतनी ठंडी थी कि अगर हम लॉन्च करें या हम कोई मार्केटिंग कैंपेन करें तो उसका रिटर्न ही ना मिले तो फ़ायदा क्या. सो पिछले 2 महीनों से अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी एक्टिविटीज़ का, और फिर ये जब गवर्नमेंट ने लोन का जो दिया, अपना घर का जो एक्टिविटी हुई, उससे मार्केट के अंदर हलचल हुई, मार्केट के अंदर एप्रिसिएशन आई लैंड्स के अंदर, प्लॉट्स के अंदर. तो ये एक बड़ी पॉजिटिव, मेरे ख्याल में इस इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ी पॉजिटिव वाइब गई है. अब हर डेवलपर की अपनी उसको इन कैश कराने का, वो कहते हैं ना कि स्टेमिना है, वो कितना स्पेंड करता है, कितना मार्केट को मोबिलाइज करता है, कितना सेल्स पार्टनर्स के साथ इंगेज रहता है, और कितने अच्छे प्रोडक्ट्स टाइम पे डिलीवर करता है. सो उससे ऑटोमेटिकली उसकी मार्केट तेज़ हो जाएगी. हलचल से मैं बात करूंगा. फेज 4 हैज जस्ट रिसेंटली बीन लॉन्च्ड. वहाँ पे डेवलपमेंट और प्रॉफिट्स अभी थोड़ी देर पहले आपके पॉडकास्ट से पहले मेरी मैनेजमेंट से, बोर्ड से मीटिंग हुई, तो मैंने उनसे गो हेड ले लिया. हम इंशाल्लाह अगस्त के अंदर या लास्ट वीक ऑफ अगस्त या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में फेज़ 4 का जो प्रोजेक्ट की जो लैंड है वो रिवील करने जा रहे हैं ऑफिशियली. सो ये मेरे ख्याल में आपके पॉडकास्ट पे फर्स्ट टाइम, या मैं फर्स्ट टाइम ही अनाउंस कर रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह अपनी फेज़ 4 की जो लैंड है उसको रिवील करने जा रहे हैं, और उसकी डेवलपमेंट ऑफिशियली ग्राउंड ब्रेकिंग जो होती है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट वीक ऑफ अगस्त और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर. सर डेवलपमेंट का ऐसा कौन सा माइलस्टोन है जिसके बाद हमें प्रॉफिट में बूस्ट देखने को मिलेगा इत्तेहाद में? सो 2 किस्म के डेवलपर्स होते हैं. एक वो होते हैं जो कि आर्टिफिशियल एप्रिसिएशन के ऊपर काम करते हैं, जो कि डीलर टू डीलर ट्रांजैक्शंस होती हैं. एक डेवलपर होता है जिसमें इत्तेहाद फॉल करते हैं, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह डे फर्स्ट से यही तरीक़ाकार है कि हम जब प्रोडक्ट दे देते हैं तो हमारी प्रोडक्ट के अंदर एप्रिसिएशन तब आना शुरू होती है जब हम ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट के ऊपर बड़ी स्पीड से काम करते हैं. लाइक फर्ज करें, अब जिस तरह फेज़ 4 है, जैसे मैंने आपको कहा कि फेज़ 4 में हमने इंशाल्लाह सितंबर फर्स्ट वीक में अपना साइट रिवील करनी है और वहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगी, मशीनरी काम शुरू कर देगी. सो उस टाइम से लेके और 6 महीने के दरमियान
जैसे हम सीवरेज डालेंगे, जैसे हमारे बेड्स बन जाएंगे, उसके बाद जब हम एस्फोर्ट करेंगे ऑटोमेटिकली 30-35-40% का रेज आ जाता है, क्योंकि उस वक्त हमारा क्योंकि मॉडल ही एंड यूज़र का है, उस वक्त तक तमाम प्रोडक्ट जो हमारी जो कोटा होता है वो एंड यूज़र तक चला जाता है, साथ में वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, तो ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट के अंदर एप्रिसिएशन आ जाती है। सो अगर हम इंशाल्लाह सितंबर में काम शुरू करते हैं तो 6 महीने बाद आप देखना 30-40% का रेज आ जाएगा। सो ये आपने फेज़ 2 में भी देखा होगा, ये आपने पाइन एवेन्यू पे भी देखा होगा, ये आपने फेज़ 3 में भी देखा होगा। सो जैसे एक हमारी प्राइस इंक्रीज होती है बिकॉज हम सेगमेंट्स बना लेते हैं कि पहला जो सेगमेंट है वो प्री लॉन्च होता है, फिर उसके बाद लॉन्च होता है, फिर उसके बाद आफ्टर लॉन्च के बाद डेवलपमेंट का सेगमेंट होता है। तो हम 3 सेगमेंट्स में सेल करते हैं। प्री लॉन्च हमारा ख़त्म हो गया, अब हमारा लॉन्च फेज शुरू हो गया, तो इसमें प्राइस ऑटोमेटिकली 10% इंक्रीज हो गई है। सो जब ये एक तो ये आपको जो जिन्होंने प्री लॉन्च पे लिया था, इसके बाद होगा जब ये मैच्योर हो जाएगी सोसाइटी, उसके बाद एक हम डील निकालेंगे, उस वक्त फिर ये 20% का हम रेज दे देते हैं प्रोडक्ट के अंदर। तो एक वो रेज आ जाता है, फिर एक होता है जो कि मार्केट के अंदर डेवलपमेंट को देख के लोगों ने उसको अपने प्रोडक्ट की अप्रिसिएशन या उसके ऊपर प्रॉफिट क्लेम करते हैं। सो वो बड़ा एक ऑर्गेनिक और बड़ा फेयर जो होता है रेज होता है वो मिलता है लोगों को। फेज़ 2 में भी 6 महीने जैसे ही हमारा पाइन एवेन्यू और रोड्स के ऊपर काम शुरू हुआ, ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि कम से कम 5 मरले में इस वक्त भी 12 से 15 लाख रुपए इंक्रीज़ आया है। और अगर आप कमर्शियल देखें तो 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ तक का इंक्रीज़ आया। ये इसीलिए आया कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो गई, प्रोडक्ट जो है पोजेशन देने के लिए रेडी हो गया, अब एंड यूज़र वहाँ पे अपना प्लॉट या घर बना सकता है या कमर्शियल बिल्डिंग बना सकता है। तो ये एक्टिविटीज़ जो हैं ये ऑन ग्राउंड नज़र भी आ रही होती हैं, और इससे जो एप्रिसिएशन होती है वो भी फिर जब यहाँ पे लोग एक दफ़ा रहना शुरू कर देते हैं, बिकॉज हम मेंटेनेंस के लिए अपना बजट अलहदा से रखते हैं। सो वो जब हम मेंटेनेंस और प्रॉपर उस सोसाइटी को प्रॉपर तरीके से उसकी 100% मेंटेनेंस कंपनी खुद कर रही होती है, जब वो चीज़ें लोग देखते हैं तो उसमें एक और एप्रिसिएशन या एक और प्रॉफिट आता है। फेज़ 1 में देखे 55 लाख का प्लॉट था, आज 1 करोड़ 60, 1 करोड़ 70 का भी नहीं मिलता, बिकॉज वहाँ पे लोग देख रहे होते हैं कि वहाँ पे 800-900 फैमिलीज रह रही हैं, घर बन रहे हैं, कमर्शियल बन रहे हैं, और मेंटेनेंस 100% जो है वो ऐसे है जैसे कि मतलब आपको एक वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा गंद का एक पीस भी टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। सो वो चीज़ों से ऑटोमेटिकली लिवेबल जो वहाँ पे लिविंग होती है लोगों की, वो खुद लोगों को रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पे सफाई बहुत अच्छी है, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छी है, यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी है। उससे वो फिर एक जंप मिलता है आपके प्रोडक्ट के अंदर। तो ये स्टेजेस हैं जो कि ऑर्गेनिक तरीके से, जिसको मैं कहता हूँ कि हम लोग जिसको फॉलो करते हैं वो इस तरीके से हम फॉलो कर रहे होते हैं। क्लाइंट्स की बात होगी, इन्वेस्टर्स की बात होगी, डेवलपमेंट की बात होगी। आई वुड लाइक यू टू हैव अ वर्ड अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ इत्तेहाद टाउन एंड एचआर प्रॉपर्टी। यार बेसिकली एचआर का तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं क्या मेरे बोर्ड भी फ़ैन है। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से मेहनत करके आप लोगों की टीम, हसन और ज़ीशान काम कर रहे हैं, राना साहब काम कर रहे हैं, बाकी जो आपकी टोटल जो प्रोफेशनल टीम है, एक तो बहुत ही कॉम्पिटेंट टीम है आप लोगों की। दूसरा ये है कि वो जिस तरीके से सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं और जिस तरीके से इनोवेटेड आइडियाज़, इनोवेशन के साथ काम कर रहे होते हैं, मेरे ख्याल में ये जो अभी भी इसमें बहुत गैप है इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि लोग मॉडर्न स्टाइल से काम करने के बजाय वही पुराने स्टाइल पे काम कर रहे होते हैं। बहुत से लोग चेंज भी हो गए, बट जिस स्पीड से आप लोग काम कर रहे हैं, एचआर की टीम काम कर रही है, मेरे ख्याल में ये वो चीज़ है जो कि हर रियल एस्टेट का जो भी काम करता है, ब्रोकर या एजेंट या सेल्स पार्टनर या स्ट्रेटेजिक सेल्स पार्टनर, मेरे ख्याल में मेरा जो अपना ख्याल है कि एचआर को एटलीस्ट उनको लाजमी एक दफ़ा उनके बिज़नेस मॉडल को विज़िट करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये लोग किस प्रोफेशनल तरीके से अपने आप को, अपने ब्रांड को बढ़ा करते जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये एक हमारी खुशकिस्मती है, और मेरे ख्याल में ये इस इंडस्ट्री की खुशकिस्मती है कि ज़ीशान, हसन और इनकी टीम जैसे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं और इस इंडस्ट्री के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि इतने क्रिएटिव एड्स रियल स्टेट में हो, मैंने कभी नहीं देखा कि इतने प्रोफेशनल हाई पेड एम्प्लॉयज़ किसी रियल्टर ने रखे हों, मैंने कभी नहीं देखा कि कितने प्रोफेशनल और टीम मेंबर्स जो कि ग्रेजुएट हैं और उनके लिए प्रॉपर करियर प्लान बना के उनको हायर किया जाए। मैंने कभी नहीं देखा
کہ 6 مہینے میں ان کے امپلائیز اپنے وہیکلز گاڑیاں خرید کے اور اپنی سواری وہ کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میرے خیال میں HR کی مینجمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے, ان کی ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے, اور اسپیشلی ان کی پروفیشنلزم اور ان کی جو کام کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جو, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ HR جیسی ٹیم, HR جیسے برانڈ اتحاد کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تھینک یو.